morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all of Standard 12 Metallurgy, Part 5, Unit 6. In this, today I am going to explain you about the thermodynamic principle of metallurgy. Student, this topic is very important on the basis of the competitive exam. Generally, many questions are asked for this competitive exam. Student, that you don't think the CBSE has removed this chapter from the syllabus, but this is only for this year only. Maybe the competitive exam syllabus it will be not deducted. So thoroughly you have to understand this for your exam and getting good marks. The process of converting metal oxide into metal, that is called the reduction, as you are very much aware of that. It needs suitable reducing agent, and that reducing agent is depending on the reactivity of reduction power of metal. Reducing agent is very important because all the ore are converted into the oxide, but that converted oxide ore is easily not at all reduced. Some ore are require the heat or some other substance to make it reduce. So which substance is a good reducing agent for that we'll come to know through this thermodynamic principle. The common reducing agent used are carbon or carbon monoxide or any other metal like aluminium and magnesium. So mostly as we know the good reducing agent is carbon monoxide. Sometimes aluminium is also behave as a good reducing agent and magnesium also. So these are the good reducing agent as per their properties. But student, which one is the best for ZNO? Which one is best for HGO or any other ore? That will come to know by thermodynamic principle. Gibbs free energy will illustrate why only a certain reducing agent and a minimum specific temperature are suitable for the reduction of metal oxide to metal in extraction. So here some metal oxide reduce very easily as I said, but some not. So for that heat is required to reduce that oxide, and for some the reducing agent is also required. Student, Gibbs free energy changes at any temperature is given by, as you know, the reaction, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. This is the Gibbs free energy equation. On the basis of that, we are going to understand which is the best reducing agent for what? Minus T delta S. Here entropy and enthalpy is depend on the temperature, where delta G is known as the free energy. Here this is the free energy, while
This delta H is considered as a change of the enthalpy, while delta S is considered as a change in the entropy, while T is a temperature. Now the relation between this delta G and K, उसके अंदर अगर हम K को लेते हैं equilibrium constant, then if the value of delta G is negative, then it is very easy to get the reaction to be convenient or spontaneous. The reaction will proceed in forward direction. That's why anyhow the value of delta G naught is to be negative. डेल्टा जी नॉट के वैल्यू को नेगेटिव लाना ज़रूरी है. तो स्टूडेंट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर अगर हम देखें तो एंट्रोपी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम पे ये वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी, तो दैट इज़ नॉट अ फिजिबल. तो उस टाइम हमें यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना ज़रूरी है. इफ इट इज़ मोर नेगेटिव देन ओनली द रिजल्ट विल बी नेगेटिव. So here pyrometallurgy informs us about the same. The heat is required to reduce the oxide into its metal, and variations of the study of temperature. यहाँ पर हम reduce तो करते हैं metal oxides को metal के अंदर, but different temperature is required for the thermal reduction, and that is known as the pyrometallurgy. Pyrometallurgy is a part of smelting. Smelting means we have to provide any of the reducing agent to the metal oxide. The changes in the Gibbs energy occur when 1 mole of oxygen is used. स्टूडेंट ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड को मेटल के अंदर. तो ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का, वो ग्राफ में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, दैट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर फॉर द नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेटल टू from their oxide, and that graph is known as Ellingham diagram, जो अभी हम इसके बाद की स्लाइड में देखेंगे. पर just I'll give you, this is the graph. Here we have the value of delta G. This is the delta G value, and here on the x-axis we have the value of temperature. This value is, here the delta G graph, it is a zero line, means the value of delta G is considered as a zero over here. और zero का नीचे का जो ये portion है student, this is the negative graph. Delta G value is negative, and here this above it is a positive. So यहाँ पर ऊपर का जो है that is the delta G value is positive, and here the delta G value is negative. तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट, और कोई ग्राफ की लाइन जो है वो हमारे ग्राफ की लाइन डेल्टा जी की अगर इस तरह से है, suppose graph is in such a manner, so from this, here it is a point from which we come to know
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर ऑक्साइड। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल या एलिंघम डायग्राम का यूज। तो स्टूडेंट, जो मैंने आगे आपको बताया, नाउ हियर व्हाट इज एलिंघम डायग्राम एक्चुअली? सो द प्लॉट बिटवीन द डेल्टा जी ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वर्सेस द टेम्परेचर। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो आपका डायग्राम मैं आपको जो यहाँ बता रही हूँ, तो ये है हमारी डेल्टा जी की वैल्यू जो किलो जूल पर मोल में है, और टेम्परेचर हियर आई हैव शोन इन द डिग्री सेल्सियस आल्सो एंड इन द केल्विन आल्सो। So this is the graph which is plotted versus the delta G and temperature. It is known as the Ellingham diagram, and it gives the idea about selecting the reducing agent. इसके ऊपर से हम कौन सा reducing agent से कौन से ऑक्साइड को reduce कर सकते हैं वो पता चलता है। And this diagram help in the predicting the feasibility of thermal reduction of an ore. But the condition is the value of delta G must be negative. तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी मैंने आपको आगे बताया, यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ है ZnO का, Zn प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO, और यहाँ पर डेल्टा जी की जो वैल्यू है दैट इज -600, और फिर वो माइनस नियर बाई 250 तक में वो पूरा ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ आप ये देख सकते हो, ये जो टेम्परेचर, ये जो लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये लाइन नियर बाई 800 डिग्री सेल्सियस पे है। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर दिस ऑक्साइड, उसके बारे में हम यहाँ पर से जान सकते हैं। अब मुझे अगर जिंक को रिड्यूस करना है, तो जिंक को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास में कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा स्टूडेंट, वो भी मैं यही डायग्राम से जान सकती हूँ। एज यू नो दिस जिंक -600 वैल्यू डेल्टा जी की है, और यहाँ आप ये ग्राफ देख सकते हो स्टूडेंट, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये जो वैल्यू है वो -700 और 800 के डेल्टा जी की वैल्यू दिख रही है। उसका मतलब ये हुआ कि जो एक दूसरे से नीचे है वो उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। तो कार्बन और कोक is below the zinc oxide in the graph, means coke can be reduced the ZnO. सेम वे अगर हम इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो Al2O3 ऑक्साइड बोर, जो बॉक्साइट ओर है उसके लिए, तो उसके नीचे आया हुआ है मैग्नीशियम। सो दिस कैन बी रिड्यूस बाय मैग्नीशियम, ये हम ये डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। सेम वे इफ यू आर गोइंग टू सी अबाउट द कॉपर ऑक्साइड, देन कॉपर के नीचे आपके पास में है आयरन, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो। तो ये सब जो है वो कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं। Now just look at the answer which is given from the slide. Extraction of zinc from zinc oxide. So the reduction of zinc oxide is done by using coke, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। The temperature in this case is higher than the case of copper. मतलब कि ये जो आपका टेम्परेचर है वो मैंने बोला आपको नियर बाई 800 के आसपास हमारा टेम्परेचर जो है वो है 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो है -800 के आसपास।
तो वो कॉपर के कंपैरिजन में वो हायर है. So for the purpose of heating, the oxide is made into briquettes with the coke and clay. तो ये यहाँ हम जिंक ऑक्साइड को इजीली कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं. So student, the Ellingham diagram is a graph showing the temperature depending the stability of the compound, जो मैंने अभी आपको explain किया. And this is generally used to evaluate the ease of reduction of metal oxide. सिर्फ ऑक्साइड के लिए नहीं स्टूडेंट, ये सल्फाइड और हेलाइड के लिए भी यूजफुल होता है. बट reduction of sulfide is difficult, and that's why we are converting this sulfide into oxide. ये ग्राफ के ऊपर से आपको और क्लियर हो सकता है. अभी जो मैंने आपको ये यहाँ पर कॉपर के लिए बताया उसके बारे में आप यहाँ पर और क्लियर देख सकते हो. टेम्परेचर जो है वो नियर बाई 2500 डिग्री सेल्सियस के करीबन है. ये तभी डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है. और उस टाइम पे ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू जो है वो डेल्टा जी की पॉजिटिव होती है. और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव की ओर जा रही है. मीन्स वी कैन से दैट कार्बन मोनोऑक्साइड कैन easily reduce to carbon dioxide also, to bauxite also, to iron oxide also. So now you understand that what is the use of the Ellingham diagram. It is used to predict the equilibrium temperature between a metal oxide and oxygen, and even it is useful for predicting the condition under which the ore will be reduced. Student, what is the characteristics of Ellingham diagram? So, if we'll take any of the metal oxide, suppose I am with this. This is the metal which is in the solid form. When it react with or it heated or it is roasting, the roasting is done or heated in presence of oxygen gas. When it is heated or roasted with presence of oxygen gas, it easily converts into metal oxide. So here we get metal oxide. Now the delta G will be positive if the temperature is increased. So थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के हिसाब से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव बनेगा. और पॉजिटिव बनने से हमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. तो वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस is greater than delta H. This result in positive slope in the curve for the most of the reaction shows. अब स्टूडेंट हमें जो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करना है. आगे जो हमने ग्राफ देखा उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो हमारी डेल्टा जी की लाइन है जहां पर हमारा डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो 0 है.
तो यहाँ होने वाला कोई भी रिएक्शन है वो तो स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर दिस, है ना स्टूडेंट। तो ये तो सारे रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रहेंगे बिकॉज दिस कंडीशन इज वेरी मच सूटेबल। बट अगर जो भी रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है उसके लिए हम अगर रिवर्स प्रोसीजर करते हैं कि उसको हम कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस या हीट प्रोवाइड करते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स फॉर्म में हो जाए, मतलब ये रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ होने वाली डेल्टा जी की जो वैल्यू पॉजिटिव है वो अपने आप रिवर्स रिएक्शन में वो हो जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये भी कंडीशन हमारे लिए सूटेबल हो गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आई थिंक सो कि नीचे का जो पोर्शन है वो तो इजीली अवेलेबल है, वो तो हम इसमें यहाँ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर ही सकते हैं जो डेल्टा जी की वैल्यू जहाँ 0 है उसके नीचे से। पर ये पोर्शन में जो भी ऑक्साइड्स है उसको अगर हम रिवर्स रिएक्शन करें तो we'll get the value of delta G negative and then it will be a spontaneous reaction. So delta G versus T for reaction of oxide formation. The graph of metal oxide, all slope is upward direction because as the temperature increase delta G becomes less negative, जो मैंने यहाँ अभी आपको इसके थ्रू समझाया। Till no change in the phase line in diagram follow straight line, मतलब कि अगर कोई भी मेल्टिंग पॉइंट में या कहीं पर चेंज नहीं आता है स्टूडेंट, तब तक अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन में रहेगा और जैसे ही कुछ चेंजेस आएगा तो उसके हिसाब से वो ऐसे ऊपर की ओर जाता है। तो टिल नो चेंज इन द फेज मतलब मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, सॉलिड लिक्विड और गैसियस में वो फेज में चेंज नहीं होता है, तो डायग्राम स्ट्रेट लाइन में होता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज नोन, जो मैंने आपको आगे भी समझाया। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट reach when the line delta G is equal to 0 and that reaction is not possible, जो यहाँ ऊपर का एरिया है। बिलो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, सो ऑक्साइड जो है वो स्टेबल होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज फीजिबल। और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 से ऊपर जो है वो ऑक्साइड इज अनस्टेबल and is decomposed to its metal by adding any of the reducing agent, जो मैंने आगे आपको समझाया स्टूडेंट। इस हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो था यहाँ एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है तो इसलिए वो फ्री स्टेट में था, अब यहाँ हमने उसको कैप्चर्ड कर लिया। कैप्चर करने से क्या हो गया स्टूडेंट, उसकी जो रेंडमनेस थी गैसियस मॉलिक्यूल की वो रेंडमनेस उसकी डिक्रीज हो गई और उसकी वजह से डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ हमें नेगेटिव मिल रही है। सो the metal which is below than the other in the graph, जो मैंने आगे की स्लाइड में आपको समझाया, वो इजीली दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। During the reduction student, the oxide of a metal decompose and the reducing agent takes away the oxygen, मतलब कि अगर हम यहाँ ये जो मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है हमने, तो मेटल ऑक्साइड जब रिड्यूस होती है तो ये मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिलती है और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किया था, सपोज यहाँ पर हम ऐसे
कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ में जॉइंट होके यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है ऐसा कोई भी सब्सटेंस बनाएगा। तो ये है हमारा कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में सपोज से है स्टूडेंट जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का हमने रिएक्शन करवाया है ये कार्बन के साथ में, मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, तो यहाँ पर ये CO और फिर हमारा जिंक मेटल जो है वो हमें रिड्यूस होके प्योर फॉर्म में मिला। मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या था कार्बन, तो कार्बन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर उसका वैल्यू था 0 और यहाँ वो हो गया +2 में, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और आपका मेटल जो है वो रिड्यूस हो गया। तो जिंक यहाँ अगर +2 चार्ज में था स्टूडेंट, वो +2 चार्ज में से जिंक का चार्ज यहाँ पर 0 हो गया, तो उसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। The value of delta G naught for C2CO2 is less than the value of CO2CO2। एलिंगम डायग्राम के ग्राफ से ये बात हमें पता चलती है स्टूडेंट। जनरली ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। So the reducing agent forms an oxide when metal oxide is reduced, और उसके लिए कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में से बेस्ट कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द कोल। पर कितने टेम्परेचर पे 983 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब कि नियर बाई 1800 डिग्री सेल्सियस के करीबन अगर देखते हैं तो कोल इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पर उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का लेते हैं तो वी कैन प्रूव दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर इफेक्टिव। Students, there is some limitation also for the Allingham diagram. Reducing agent takes how much time to reduce the metal, that will be not at all any idea कि कितना समय में वो रिड्यूस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कब वो टेक ओवर करेगा, दैट आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया। बिकॉज एज वी नो जैसे ही रिडक्शन होता है हम वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट को रिमूव करते रहते हैं। वी आर रिमूविंग द प्रोडक्ट एज सुन एज द कन्वर्ट। तो इसीलिए कितना प्रपोर्शन बाकी रहा है और वो कितने टाइम में मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल में कन्वर्ट होगा, दैट इज नॉट गेटिंग एनी आइडिया फ्रॉम द डायग्राम। एंड द इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट जो है उसकी रियल वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं चलती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एज द रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, दैट विल बी not at all getting idea. Thank you students. From this video lecture you are very much aware of the Allingham diagram and their uses. Next video lecture will just try to use applications of this Allingham diagram, और उससे पहले आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है वो याद रखोगे, और any of the doubt or queries you can just mail me। and हाँ स्टूडेंट, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है आपको। सो प्लीज 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 शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।